أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. उनकी महक में दिल के, उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, उनकी महक में दिल के। उनके मिसाल कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। मुल्के सुगम की शाही तुमको रिज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा
my Akhi in Islam, brother in Islam, Ahmad, Sayyid Ahmad, and he belongs to Turkey, and he can't speak Urdu and Punjabi language. So first of all, he would disclose the agenda of this meeting. Well, Bismillahirrahmanirrahim. We all know why we're here for. The reason on Sunday I had a program on TV, and I had a brother from South Africa. So we have doubts. You have doubts about their Aqidah. You show me some books. So obviously I went and told them. So the reason for us to have this meeting is, inshallah, to sort this out. If, as they are saying, they are Hanafi, Sunni Muslim, and they believe in everything to do with our Prophet, right? And their Aqidah, sallallahu alayhi wa sallam, Aqidah is exactly like our Aqidah, right? So that's why we have the meeting here. Inshallah, the meeting will be held in a beautiful manner as it started, right? So what we'll do is, I even thought yesterday that we could bring the Holy Quran, maybe just to make people be sure that what they say, it is right. If they put their hands on the Quran and say, yes, I do, no, I don't, there is no doubt in that. So we'll do the recording here, and inshallah, after the recording, we can take it to Birsa, show it to other people. If there's anything further needs to be done, do it. But I'm hoping that it will finish here. So at the end of this meeting, as the Ghazali said, you said, if their Aqidah is like our Aqidah, we have no problem. So there is this beautiful feeling in this town. You know, there's no difference. So we can go to each other's mosque. Doesn't matter which mosque is it. We can go to each other's mosque. And so what we'll do is we'll start it with 15 minutes, whichever, either you or Imam Ghazali, Imam Abuji speak. Then afterwards, you can ask the questions and they can give you the answers for the questions. Yes, no, I do, I don't. Right? And then inshallah we'll go from here as brothers. Does anyone want to add anything? Yes, just a minute, because you explained all these things in English language. Yeah, oh yeah. Because of this problem that our honorable scholar, Allama Muhammad Farooq Nizami Sahib, he can't speak English language. So I would like to explain all these things in our own language, if you don't mind. You have the meeting in Urdu. Yes. No, not in English. I don't need to Yes. on nothing. Actually, the agenda which has been disclosed by yourself, I would like to explain this agenda in Urdu language, to make it easy for him. Bismillahirrahmanirrahim. Allama Nizami साहब, भाई अहमद सैयद अहमद जो तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कहते हैं कि ये जो मीटिंग का एजेंडा है, इसकी ज़रूरत इसलिए ये पेश आई है, ये मीटिंग करने की, कि ये नूर टीवी पर तशरीफ़ ले गए थे ईद के प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ पर ये अपने साथ मौलाना रशीद साहब का अजीज है, उसको साथ ले गए थे, जिसकी वजह से नूर टेलीविज़न पर भी बहुत सारे टेलीफोन गए और लामाता हमें भी जब इत्तला मिली तो हमसे भी बात हुई, फिर हमने इनसे भी बात की। तो ये कहते हैं कि जब आप लोगों ने मुझे किताबें दिखाई और ये बताया कि ये इनकी गुस्ताखाना बातें हैं, ये अकीदा है, तो ये कहने लगे कि नहीं, मैं जाकर उनसे फिर बात करूँगा। फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने उनसे बात की, तो आज वो आपके सामने बैठे हैं रशीद साहब, तो इनके साथ आदत साहब आए हैं, तो ये बात यहाँ सामने करते हैं। अभी ये चाहते हैं कि ये गुफ्तगू यहाँ पर हो और 15-15 मिनट दोनों तरफ को दिए जाएं, फिर बात आगे चले, फिर आंसर क्वेश्चन जो भी हो, तो उसके बाद फाइनली जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसको उन तक पहुँचाया जाए, उनको भी दिखाया जाए, वो देखें, और भी इस्लाम स्कॉलर वो भी बेशक इसको देखें, पब्लिक भी देखना चाहे वो भी देखें, ताकि सबकी जो कोई शुबहात है वो दूर हो जाए। तो एक तो इन्होंने ये मसला बयान किया है, तो ये तो इनके एजेंडे की सूरत हाल है। और फिर उन्होंने ये कहा कि उसके बाद आप लोगों ने हमारा कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये कहा था अगर उनका अकीदा सुन्नी हनफी हुआ और हमारे अकीदे के मुताबिक उनके अकायद हुए तो फिर हमें
कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दूसरे की मस्जिद में आएंगे जाएंगे, ये सारी फजा जो है बड़ी पीसफुल होगी। तो ये तो बातें जो अहमद भाई ने की, लेकिन इतनी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इब्तिदाअन जब हमने अहमद भाई से ये रिक्वेस्ट की थी तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि अगर ये हमारी बातचीत चले, कोई बात हो, तो कम अज कम दोनों तरफ के जो हजरात हैं, दोनों मसाजिद से जिनका ताल्लुक है, आपके मस्जिद के साथ जिनका ताल्लुक है, जो हमारे से ताल्लुक रखते हैं, वो हजरात सामने बैठे और उनके सामने हमारे गुफ्तगू हो, ताकि लोगों को पता चले कि हमें नहीं खामखा इश्तियाल दिलाते और झगड़े करते और ये बातें करते, बल्कि ये इख्तिलाफात हैं, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हमारे जो कि दरमियान में मिडल मैन ये थे, तो इन्होंने आपसे बात की तो आपने बकौल इनके ये बता रहे थे, अंसर भाई में बता रहे थे, आप कहते हैं जी नहीं कि मैं और आपके साथ डॉक्टर अफजल साहब आप दोनों आए। तो हमने बड़ी कोशिश की कि दोनों तरफ के बंदे हों, ताकि वो अपनी आंखों से देखें कि क्या हुआ है, क्या बात हुई है, कि यानी हम वैसे ही नहीं झगड़े थे, खुदा वास्ते का हमारा आपस में बैर और दुश्मनी नहीं है, बल्कि उसके अंदर ये सॉलिड रीजन हैं जिसकी बिना पर हमारे दरमियान के खिलाफ। तो जब आपकी तरफ से जवाब हमें नफी में मिला कि नहीं, बंदे बाकी नहीं होने चाहिए, तो फिर हमने एक और जो है वो सजेशन पेश की, वो ये थी कि चले एटलीस्ट दोनों तरफ से 5-5 बंदे तो, यानी अगर हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते हैं जिन्होंने दीन पढ़ा है, तो क्या हमारे पीछे नमाज पढ़ने वाले उनके अंदर ये शऊर नहीं कि वो बड़े पीसफुली बैठ के इस चीज को देखें, सुने और बात सिर्फ हम करेंगे। तो लेकिन फिर पता चला कि आपके बारे में क्या आप कहते हैं कि नहीं, मतलब है वो बंदे 5 भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे। तो हमें सच्ची बात है कि बात सुन के बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि क्यों हम कुछ चोर हैं, जब कुछ चोरी करनी है, हमने कोई ऐसा हमारा हिडन एजेंडा है जिसको हमने लोगों की आंखों से छुपा के बात करनी है। तो बहरहाल हमने कहा चले अगर एक मसला ऐसे हल का है और मौलाना रशीद साहब इस बात पर वजिद हैं कि नहीं हम ही बैठे, तो फिर आखिर में मुझे बात बताएगी कि आप कहते हैं कि नहीं मेरे साथ डॉक्टर अफजल साहब भी नहीं आएंगे, मैं सिर्फ अकेला हूं। उनकी मर्जी, आपको नहीं मान रहे हमारी ये तजवीज के सारे बंदे हों वो भी नहीं, 10-10 हों वो भी नहीं, 5-5 भी हों वो भी नहीं। अब वो अगर अपने साथ अपना एक मुआविन भी नहीं लाना चाहते, खुद सिर्फ आना चाहते हैं, चले उनकी मर्जी है। तो ये बहरहाल सूरत हाल पेश आई, जो हमने पूरी कोशिश की कि हमारे जिम्मेदार जो लोग हैं, जाहिर है लोग माशाल्लाह बड़े क्वालिफाइड हैं, आंखें दिमाग काम रखते हैं और इतने अल्हम्दुलिल्लाह वो बाशऊर है कि वो बड़े प्यार से, यानी जब उनके सामने बात वाज़ेह हो जाए, मुझे यकीन कामिल है इंशाअल्लाह कि लोग जो है वो इतने शऊर रखते हैं कि वो आपको कबूल करने के लिए आमादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने उन्हें मतलब कहा कि सिर्फ हम हों तो कोई बात नहीं, ये तो था मीटिंग का एजेंडा जो हमने पेश कर दिया। अब जिस सिलसिले में जिस बारे में हमें आपके अकायद के हवाले से था शुबा, ये बात है, इन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि हम सुन्नी हनफी हैं। एक मिनट के मुझे 1 मिनट अगर मैं बात कर लूं तो उसके बाद टाइम आपको खुला खुला देंगे, नहीं 15 मिनट आपको दे देंगे। और नहीं, मेरा मकसद ये है कि हम ऐसा करते हैं ना कि 15 मिनट आपके जो है जी वो घड़ी के मुताबिक फिर शुरू करें। ठीक है, ठीक है, फिर वो आप 15 ये तो मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। अगर आप मुझे 15 मिनट दे देते हैं, यही मैं कह रहा था। अच्छा, अब जब आप 15 मिनट मिसाल के तौर पर 10 बजे आप शुरू करेंगे, 10 बजे आप खत्म कर लें, बेशक 20 मिनट कर ठीक है, तो उसके दरमियान में हमारी तरफ से कोई भी एक लफ्ज भी नहीं आएगा, हम सिर्फ खामोशी से सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम 15 मिनट बात कर लेंगे, जो भी मतलब जो हमारा जो मकसद है, ठीक है, आने का यहाँ। फिर उसके वो जब सेशन खत्म हो जाए, अब जब हम बात करें हमारा मौका होगा, आप खामोशी से सुनें। ठीक है, उसके बाद आप अपने सवाल जो हमसे करना चाहते हैं आप हमें करें, फिर हम आपको उसके जवाब दे देंगे। हम आपसे कोई सवाल करना नहीं चाहते। अच्छा, उसकी वजह यह है कि हमें आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं, यानी आपको हमारे अकीदे पर कोई एतराज भी नहीं है, कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, और ना हमने कभी इस मसलक को या इस मसले को हमने हमारी मस्जिद में छेड़ा है। ठीक है, और ना हम आइंदा छेड़ेंगे। चाहे ये मीटिंग ये पीसफुली खत्म हो और सब कुछ हो भी जाए, ना भी हो, खुदा ना करे ना भी हो, फिर भी हमने नहीं छेड़ना है, ये हमारा काम है। तो ना हम यहाँ मुनाजरे की हैसियत से आए, बस एक मसला था इस बाई का, तो हम उसको क्लियर करने के लिए आए हैं। अब आपको मैं इजाजत देता हूँ, 15 मिनट जो है इससे पर
this happened because of, right? They didn't do nothing, we did nothing. I took someone on the TV station and it happened because of me, right? So I wanted to sort it out. And the problem is between two. If there was 5 and another 5, 10 people, maybe they are not at the same adab as you are or as he is. He might have got out of way, one says one thing, another says one thing. So I thought it is better like these people who are Mawlanas and who know what they're talking about, to talk in between each other. Answer must remember what I said to him on the phone. And it's recorded here, so that you can show it to people. This is only what I wanted to say. Yeah, or You can carry on the rule. मौलाना बात यह कि इससे पहले कि आप मुझे वो 15 मिनट दें, मैं 2-4 बातें पहले क्लियर कर लें हम आपस में, अगर बात हमें करनी है उस मौजूद पे आगे चलते हैं। तो ये जो आपने फरमाया है कि आप जो है अपनी 15 मिनट की गुफ्तगू में हमारे ऊपर कोई एतराज, कोई सवाल इस किस्म की बात नहीं करेंगे, ना कभी की है आपकी मस्जिद में, ना कभी किसी और मौका पर, या नहीं करने के लिए आप तैयार हैं। मैंने इसकी एक बात दरमियान में पूछी है, फिर मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आया आप हमारे मसलक, हमारे मजहब, हमारे अकीदे, जिस अकीदे पर हम कायम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका पहरा दे रहे हैं, आप उसको मबनी पर हक और सच समझते हैं, इसीलिए आपको उस पर कोई इतराज नहीं। माशाअल्लाह, बस ये एक बात तो बिल्कुल नहीं। ये बात भी ठीक है, यानी एक बात ये है, आप दुआ नहीं है, हम भी दुआ है। आपस में मसलन गुजारी सब बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि किसी बात की जरूरत है या बोलने की इजाजत, तो मैं बोल सकूँ। जिस तरह आप भी अगर बात कर रहे हैं और आपसे कोई बात रह रही है और वो समझते हैं पूरा करने में बोल सकते हैं, तो हम ये आपस में 4 बात कर सकते हैं, और कोई नहीं हमारे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इस बात का जो तर्जुमा है वो बाद में जब रिकॉर्डिंग आएगी तो उनको समझा देंगे, बिल्कुल उसमें और आधा घंटा में। हाँ हाँ बिल्कुल। I just said to Imam Sahab that the recording that we are going to do it, we will explain it afterwards. Exactly, I don't need it. Then we need 1 hour. Exactly, I don't need translation. It's finished. So for this, but when he asked the question to me, right, and then I'll reply. So those answer and those questions I'll translate for you. Or either Imam Ghazali Sahab will translate. That's fine. मैं खुशी हुई मुझे इस बात से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि मौलाना साहब ने इस बात का इकरार किया कि मुझे आपके मसलक पर कोई इतराज नहीं है, आपके मसलक को हक समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। सिर्फ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ क्लियर हो जाए कि जब वो हमारे मसलक को हक समझ रहे हैं, सच समझ रहे हैं, जैसे कि आपने सवाल किया और उन्होंने इसका इतराफ़ किया और बताया कि मैं इसको बिल्कुल, मेरा इस पर कोई इतराज़ ना है, ना होगा, ना करता हूँ, ना करूँगा। तो सिर्फ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा मसलक जो है वो हम सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको इन्होंने हक माना और आपका ताल्लुक आप खुद बता रहे हैं या हमें तो पता है। अब चूंकि इसमें इन सवालों में वक्त लग रहा है, आपसे साथ ही पूछना पड़ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ वो अगर क्लियर हो जाएगी ना, ये चंद बातें क्लियर हो जाए। ये बातें तो नहीं थी, हम क्लियर कर रहे हैं कि हमने बात करनी है तो किस तरह करनी है। हमें मुखातब का पता तो होना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको समझ पूछ रहा हूँ खुद, लेकिन हूँ आप कुछ, तो इसलिए चूंकि हमने आपके सामने वादे कर दिया कि हमारा ताल्लुक किस मकसद फिक्र से, आप भी हम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इब्ला नामी साहब ने जिस तरह फरमाया, इस तरह हमारा जो मसलक है वो हनफी सुन्नी, और हम भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे जो उस्ताद हैं उनका ताल्लुक़ जो था, जो सिलसिले नसब जो है, जिनसे उन्होंने हदीस पढ़ी है वो मिलता है, पूरा शब्द नसब में मिला के दे सकता हूँ। जी जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिलता है, ठीक है। तो रहा ताल्लुक़ देवबंद का। अब देवबंद में चूंकि इख्तिलाफ है, ठीक है, कुछ उलमाओं में कुछ कहते हैं नहीं ये है, कुछ कहते हैं नहीं वो है, वो मैं भी नहीं बताऊंगा, वो मैं अपनी 15 मिनट में बताऊंगा। तो
ایک تعلق ہے